IEEE's membership has long been engineers, scientists, and all other professions, which include computer science, software developing, and information technology. For this reason, the organization no longer goes by the full name except on legal business documents and is referred to simply as IEEE. On the ground level, it is a platform for people who are willing to learn their business by just simply being a member of world's largest online community. What mission does IEEE have? The IEEE promotes the engineering process of creating and developing, integrating, sharing, applying knowledge about electronics and information technology and science for the benefits of humanity and the profession. Back. Okay, next. Benefits for members. What the benefits a member have if he becomes a part of IEEE? Establish a professional and profit highlighting your goals. Discover IEEE events and activities throughout the world. Join and participate in discussions on various technical interests. Create a group to share projects. Next. Now come towards benefits of being a IEEE member. Which resources IEEE give? In IEEE, get resources on news, web TV programs, ebooks, and educational resources allow you to stay connected with latest technologies and trends. Program to advance your career goals, skills, and much more. Opportunities. Expand your personal network with who share your expertise and commitment. Join IEEE societies or groups focused to area of special interests. Discounts. Enjoy discounts to IEEE, technical resources, digital libraries, continuing education courses, and much more. Next. What advantages IEEE have for a student? Students get certificate for a program, online learning network, resource centers, e-libraries, and chance to learn with the professionals from all over the world. Next. Goal of IEEE in future. Drive global innovation board, through broad collaboration and sharing of knowledge, enhance public understanding of engineering and technology, and pursue standards for their practical application, be a trusted source of educational services and resources to support lifelong learning, provide opportunities for careers and professional development. Next, with great motive to great achievements of IEEE. IEEE promotes to drive growth over the next 5 years. Delivering on this plan, you can be a part of this reliable platform of IEEE by just filling the form online by the provided link. Next. In the end, I want to say thank you to the head of our IEEE platform, Sir Naeem Akbar Chanar, who gave us the opportunity to be a part of his team. Thank you. Thank you, Zaid. Hello everyone. I am Vishal Kumar. Today, I will be hosting you guys. I welcome you all in this session. Further, I would like to invite Sir Naeem Channar for today's webinar about augmented reality. And one more thing, I also want to mention that a recorded version of this webinar will be available in case if you are disconnected. We would like to hear from you. Any questions you have, you can ask freely in the chat box. Sir Naeem, you are welcome. अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हाल है सबके? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो बेटा, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ IEEE आपने सुना कि जेबिस के अंदर IEEE का काम क्या है। जेबिस के अंदर IEEE का काम ये है कि आप स्टूडेंट्स के लिए जितने ज़्यादा टेक्निकल सेमिनार या वेबिनार्स हम करवा सकें तो वो हम करवाते हैं। और उसके अलावा मेंबरशिप के एडवांटेजेस भी आपने देखे कि बहुत सारे आपको एडवांटेजेस मिलते हैं इफ़ यू आर मेंबर ऑफ IEEE।
सबसे पहले तो एक ग्लोबल नेटवर्क के अंदर आप एक्सपर्ट्स जितने भी हैं वर्ल्ड के अंदर, आपकी फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस के अंदर, आप उनके साथ अपने डिस्कशंस कर सकते हैं और उनके साथ अपनी शेयरिंग कर सकते हैं, अपने आइडियाज ले सकते हैं। तो एक कंप्लीट एक ग्लोबल नेटवर्क है टेक्नोलॉजी का। उस ग्रुप के अंदर जो है आप इन हो जाते हैं और उसके अंदर आप अपनी डिस्कशंस करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। और इसके अलावा अगर आप IEEE के मेंबर होते हैं तो एक मेन एडवांटेज ये है कि इफ यू आर इनोवेटिव स्टूडेंट, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं और अगर उनको आइडियाज अच्छे लगते हैं, अगर वो आइडियाज बिल्कुल कैपेबल होते हैं, तो उनको फंडिंग्स दी जाती है उन आइडियाज के ऊपर। और बहुत सारी स्कॉलर्स होती हैं जो कि आपको IEEE प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है। तो आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर। तो मेरा जो बेसिक एम ये था कि ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर आपको एक प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाए, लेकिन बिकॉज ऑफ ऑनलाइन सिनेरियो, इस सिनेरियो के अंदर जो टूल्स यहाँ पे अवेलेबल्स हैं और उसके अंदर हमें बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वजह से उस हिसाब से जो प्रैक्टिकल वर्क है वो इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसी वजह से जितना हो सकता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। इस वेबिनार को अटेंड करने के बाद आप खुद अपनी ऑगमेंटेड रियलिटी की एप्लीकेशन क्रिएट करने के कैपेबल हो जाएंगे। और उसके अलावा जो ट्यूटोरियल्स हैं वो ट्यूटोरियल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल्स हैं, जो टूल में लेकर आया हूँ उससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। अगर आप उन चीज़ों को सही से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप कैपेबल हो जाएंगे। वो जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली तो ये सारी चीज़ें मुझे क्रिएट करके दिखानी थी, फिर चला के दिखानी थी, लेकिन क्योंकि इस ऑनलाइन सिनेरियो के अंदर ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा डिवाइस चाहिए, मतलब मोबाइल फ़ोन चाहिए, कैमरा चाहिए। फिर कैमरा के ऊपर अगर मैं मोबाइल को रखता हूँ तो वो सही से फोकस नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो इस वजह से जो प्रैक्टिकल वर्क है उसका मैं आपको प्रोसीजर कंप्लीटली बता दूंगा और उस प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप इन तमाम एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं जो मैं अभी आपको डिफाइन करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप प्ले स्टोर पे जाएं और प्ले स्टोर पे जाने के बाद ज़ेपर नाम से एक एप्लीकेशन है। आप प्ले स्टोर पे सर्च में ज़ेपर लिखें तो एक ज़ेपर नाम की एप्लीकेशन आ जाएगी। उस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर दें। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा उसका जो आउटपुट है वो आप अपने मोबाइल फ़ोन पे देखेंगे। अगर आप लैपटॉप से साइन इन हैं तो आप अपनी मोबाइल को यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप मोबाइल से ही साइन इन हैं तो फिर आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आप उस चीज़ का आउटपुट देखें। तो सबसे पहले बेटा टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी। अब देखिए हमारे पास डिफरेंट रियलिटीज़ हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो मशीन लर्निंग से रिलेटेड हो जाती है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा हम सुनते हैं वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और इसी तरीके से आपके पास मिक्स रियलिटी। तो ये तीन चीज़ें होती हैं और ये बेसिकली इनका काम क्या होता है इनको हम एक्सप्लेन करेंगे और वन बाय वन इन तीनों चीज़ों को मैं डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और उनके बाद उनकी कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, ज़ेपर स्टूडियो क्या है और ज़ेपर ऐप क्या है। तो बेसिकली ये तो आपका एक बहुत अच्छा सेमिनार होना चाहिए था अगर ये फिजिकल होता, लेकिन बिकॉज ऑफ पेंडेमिक सिचुएशन तो इस चीज़ को हम ऑनलाइन लेकर आए हैं और ये उस तरीके से कंडक्ट नहीं हो सकता जिस तरीके से इसको होना चाहिए।
क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत अच्छा सा प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाना था हमें, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर ये सिचुएशन आपकी रिमूव हो जाती है तो इसको हम दोबारा से फिजिकल सिनेरियो में लेकर आएंगे और इसको इंशाल्लाह उस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले वर्चुअल रियलिटी क्या है? देखें, द वर्ड वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब ये होता है कि फेक, ऐसी चीजें जो कि नहीं है लेकिन वो हमें नजर आती हैं। तो वर्चुअल का मतलब ऐसी चीज है जिनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जिनका कोई भी वजूद नहीं है आपकी रियल वर्ल्ड के अंदर। आप उनको देखते हैं लेकिन वो सिर्फ नजर आती हैं, लेकिन वो हकीकत में नहीं होती। तो वर्चुअल के अंदर बेसिकली जितनी भी चीजें आप देखते हैं, जो भी आपकी टेक्नोलॉजीज हैं, वर्चुअल क्लासेस हैं या ऐसी कोई भी चीज है जिसको आप देख रहे हैं लेकिन वो हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती, रियल वर्ल्ड में उसका कोई वजूद नहीं है, तो उसको कहा जाता है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी में जितनी भी चीजें होती हैं वो 100% जो होती हैं वो फेक होती हैं। मतलब उसमें आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं शुरू से लेकर आखिर तक, वो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, वो फेक होती हैं। अब जिस तरीके से आप इस पिक्चर में देखें कि एक बंदा है और एक डिवाइस के ऊपर लेटा हुआ है। अब हकीकत में क्या है, हकीकत में वो किसी एक मशीन के साथ कनेक्टेड है, लेकिन वो जो देख रहा है वो ये देख रहा है कि वो आसमान के अंदर एक परिंदे की तरह उड़ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उसके साथ, तो हकीकत क्या है और उसको नजर क्या आ रहा है, तो इसे कहा जाता है वर्चुअल रियलिटी। मतलब एक चीज को आप रियल में देख रहे हो, उसको आप रियल में फील कर रहे हो, लेकिन वो रियल नहीं है, वो फेक है। और इसके अंदर जितनी भी चीजें हम देखते हैं, जितनी भी चीजें हम महसूस करते हैं, वो 100% आपकी फेक होती है, 100% आपकी एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसा समझ लें कि झूठ है। तो वर्चुअल रियलिटी बेसिकली 1959 के अंदर अपीयर हुई थी बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को मर्ज करके आपकी एक ऐसी विजुअलाइजेशन को क्रिएट किया गया जिसमें हमें पता चल रहा है, हम चीजों को महसूस करते हैं लेकिन वो रियल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो वर्चुअल रियलिटी बेसिकली आजकल हम यूज करते हैं साइमुलेशन पर्पस के लिए। अब साइमुलेशन क्या होता है, साइमुलेटेड एक्सपीरियंस क्या होता है? देखें, जो चीज हम रियल के अंदर नहीं कर सकते और उसको एज ए एक्सपेरिमेंट अगर हम करते हैं किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या किसी कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू, तो एक्चुअल में वो चीज नहीं हो रही होती, लेकिन हम उन फॉर्मूलाज के ऊपर, उन चीजों के ऊपर अपनी वो चीजें फुलफिल करते हैं, तो उससे हम कहते हैं साइमुलेशन। अब जिस तरीके से सपोज करें कि एक एग्जांपल दूं कि अगर आपके पास कोई भी एरोप्लेन है, ठीक है, या जिस तरीके से मिलिट्री के अंदर आप चले जाएं, तो जब भी कोई पायलट बनता है तो डायरेक्ट उसको रियल फाइटर जेट के ऊपर नहीं बिठा के सिखाया जाता। तो सबसे पहले पायलट की ट्रेनिंग कैसे होती है? पायलट की ट्रेनिंग इस तरीके से होती है कि उसको एक प्लेन में बिठाया जाता है और उनको वीआर ग्लासेस पहनाए जाते हैं और उसको रियल में लगता है कि वो एक प्लेन उड़ा रहा है। लेकिन हकीकत में क्या होता है? हकीकत में ये होता है कि वो प्लेन उसी जगह पे बैठा खड़ा हुआ होता है और वो उन कंट्रोल्स को जस्ट प्रेस कर रहा होता है और प्लेन के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती। लेकिन वर्चुअल रियलिटी से वो क्या देख रहा होता है कि वो उस प्लेन को हवा के अंदर उड़ा रहा है। तो इसी तरीके से मेडिकल साइंस के अंदर भी आजकल बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज इन्वेंटेड की गई हैं जिसमें एजुकेशन पर्पस के लिए डॉक्टर्स को ऑपरेशन करने से पहले उनको अगर एक्सपीरियंस करना है तो वो इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उस एक्सपीरियंस को गेन कर सकते हैं, ताकि जब वो रियलिटी के अंदर उन चीजों को इम्प्लीमेंट करे तो उसमें उनके पास कम से कम मिस्टेक्स क्रिएट हो। तो वर्चुअल रियलिटी के अंदर वर्चुअल रियलिटी जो होती है वो 100% फेक होती है,
उसमें कोई भी चीज रियल नहीं होती। उसी के बाद जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस बताई वर्चुअल रियलिटी की, कि आपके पास हजारों एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि एजुकेशन के अंदर यूज होती है, मिलिट्री के अंदर यूज होती है। आप अगर देखें, अगर सर्च करें तो आपको हजारों चीजें मिल जाती हैं वर्चुअल रियलिटी के अंदर। तो जिस तरीके से आप आर्किटेक्चर्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स के आर्किटेक्चर्स बनाते हैं, तो उसमें भी हमारी काफी हद तक वर्चुअल रियलिटी यूज होती है। रोबोटिक्स के अंदर काफी हद तक वर्चुअल रियलिटी यूज होती है। तो वर्चुअल रियलिटी बेसिकली हम एक्सपीरियंस गेन करने के लिए यूज करते हैं, ताकि उस एटमॉस्फेयर को हम फील कर सकें, उस एटमॉस्फेयर को हम फील करके उस चीज का जो एक्सपेरिमेंट है, वॉट एवर एक्सपेरिमेंट यू आर डूइंग, अगर आप हेल्थ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप मेडिकल का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या फिर आप किसी और चीज का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक्सपीरियंस गेन करने के लिए हम अपने वर्चुअल रियलिटी को यूज करते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास है ऑगमेंटेड रियलिटी। अब वर्चुअल रियलिटी के अंदर क्या था कि जितनी भी चीजें आप देख रहे थे वो सारी की सारी 100% फेक थी, झूठी थी, सारी की सारी। आपको जितना भी एटमॉस्फेयर या जो भी चीजें नजर आ रही हैं, वो सारी की सारी चीजें आपकी फेक है। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी जो है वो कॉम्बिनेशन है रियलिटी एंड आर्टिफिशियल्स का। मतलब इसके अंदर फेक चीजें भी होती हैं, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस भी होती हैं, कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेशंस भी होती हैं, और उसके अलावा आपके पास रियल एनवायरनमेंट भी होता है, कि आप रियल एनवायरनमेंट के अंदर किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, किसी एप्लीकेशन के थ्रू उसमें आप कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेशन या कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस आप ऐड करते हैं एक रियल इंटरफेस के ऊपर। अब जिस तरीके से प्रीवियस इमेज मैंने आपको दिखाई थी कि इसमें हमें नजर आ रहा है कि एक पर्सन है जो कि किसी मशीन के ऊपर बैठा हुआ है, हमें नजर यही आ रहा है कि ये मशीन के ऊपर हाथ पांव हिला रहा है, लेकिन इसको क्या नजर आ रहा है, इसको ये नजर आ रहा है कि ये हवा में एक बर्ड की तरह फ्लाई कर रहा है। लेकिन अगर आप इस इमेज को देखें तो इस इमेज में आपके पास एक सिनेरियो है, उसी सिनेरियो के अंदर एक रियलिटी के अंदर हमने क्या की है, रियलिटी के अंदर हमने कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस जो हैं या कंप्यूटर जनरेटेड ड्राइंग जो है वो हमारी ऐड की गई है। तो वर्चुअल रियलिटी बेटा 100% आपकी फेक होती है। ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर आप अपनी रियल सिनेरियो को यूज करते हुए उसके अंदर आप अपनी फेक इमेजेस या कंप्यूटर जनरेटेड डेटा को ऐड करते हैं। जिस तरीके से हमारे पास अभी गूगल लेंस है, अगर आपने गूगल लेंस के बारे में सुना हो तो गूगल लेंस क्या करता है, उसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज हैं, जिसमें सिंपल आपको एक सर्विसेज का बता देता हूं कि गूगल लेंस के अंदर आपके पास कैमरा ओपन होगा और जिस प्लेस के पे आप खड़े हुए हैं या जिस बिल्डिंग पे आप खड़े हुए हैं या कैमरा के ऊपर जिस बिल्डिंग के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, तो कैमरा के अंदर तो बेसिकली वो बिल्डिंग आती है। गूगल लेंस उसमें एडिशन क्या कर देता है, उस बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है कि भाई ये बिल्डिंग का नाम क्या है, इस बिल्डिंग की डिस्क्रिप्शन क्या है, इस बिल्डिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। तो वो सारी चीजें जो हैं वो आपकी उसी इमेज के ऊपर उसी कैमरा के अंदर ऐड हो जाती हैं। तो इसी तरीके से जिस तरीके से आपके पास स्नैपचैट है जो कि बहुत फेमस है, हर कोई यूज करता है, तो उसके अंदर जो कैमरा आप ओपन करते हैं और उसके अंदर हजारों फिल्टर्स लगाते हैं, ठीक है, आप ही की पिक्चर के ऊपर हजारों चीजें ऐड हो जाती हैं। तो ये भी हमारे पास एक ऑगमेंटेड रियलिटी का रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर जिस तरीके से आप देखते हैं कि हमारे पास आजकल 3D ग्राफिक्स हो रही है, आपने ऐसे कंप्यूटर्स देखे होंगे जिसके अंदर आप किसी पेन से जो है वो 3D ग्राफिक्स को यूज करते हुए अपनी चीजों को क्रिएट करते हैं। तो ये भी हमारी ऑगमेंटेड रियलिटी की एक एप्लीकेशन है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी जो है वो कॉम्बिनेशन है आपके रियल वर्ल्ड सिनेरियो और कंप्यूटर जनरेटेड डेटा कह लें
इमेज कह लें, एनिमेशन कह लें या वीडियो कह लें, कुछ भी हो सकता है। तो कंप्यूटर से आप किसी रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चीज ऐड करते हैं तो वो हमारी ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर आ जाती है। तो उम्मीद है बेटा ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि वर्चुअल रियलिटी के अंदर आपके पास जितनी भी चीजें होती हैं वो 100% फेक होती हैं, और ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो में अपनी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस हैं या कंप्यूटर जनरेटेड टेक्स्ट है या कंप्यूटर जनरेटेड इंफॉर्मेशन है, तो उस इंफॉर्मेशन को जो है आप ऐड करते हैं। तो बेटा इसमें अगर कोई चीज क्लियर नहीं है किसी को तो वो पूछ सकता है कोई भी सवाल अगर आपको करना है। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, इसमें कोई ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होगी जो कि आपको समझ में नहीं आ रही होगी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी? तो वर्चुअल रियलिटी जो होती है वो टोटली इमर्सिव एनवायरनमेंट, मतलब जो भी चीज आप देख रहे हो ए से लेकर जेड तक वो 100% आपका फेक है। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर तमाम चीजें फेक नहीं होती। ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर जिस तरीके से स्नैपचैट के अंदर आप कैमरा ओपन करते हैं और अपना फेस दिखाते हैं तो फेस जो है वो रियल है, लेकिन उसके अंदर बाकी जो चीजें एक्स्ट्रा चीजें हैं, कभी आप बंदर बन जाते हैं, कभी आप लड़की बन जाते हैं, कभी लड़का है तो वो लड़की बन जाता है, लड़की है तो लड़का बन जाता है, ठीक है। तो ऐसी जितने भी सारे इफेक्ट्स हैं वो सारे के सारे फेक होते हैं, लेकिन जो पिक्चर आपकी होती है वो रियल होती है। तो एक रियल एनवायरनमेंट के ऊपर आपकी जो फेक चीजें हैं वो ऐड की जाती हैं। सेंस आर अंडर कंट्रोल ऑफ सिस्टम, उसके अंदर जितना भी सेंस होता है, ठीक है, वो सारा का सारा आपका सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। मतलब पूरे एनवायरनमेंट को आपका कंट्रोल कौन करता है? वो सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। कंप्यूटर सिस्टम है या सॉफ्टवेयर है या जो डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं। तो इसके अंदर जितना भी सेंस होता है वो पूरा का पूरा सिस्टम के कंट्रोल में होता है। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर ऐसा नहीं होता। ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर जो कंट्रोल होता है, जो सेंस होता है, वो आपके रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को देख के होता है कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को देखते हुए उसके अंदर वो सारी चीजें आपकी ऐड की जाती हैं या उसको कंट्रोल की जाती हैं। नीड अ मैकेनिज्म फॉर फीड वर्चुअल वर्ल्ड टू यूजर। तो यूजर को एक ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करना पड़ता है या क्रिएट किया जाता है जिसमें जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी चीजें आपकी फेक होती हैं, और उस फेक एनवायरनमेंट के अंदर वो सारे के सारे काम परफॉर्म होते हैं। नीड ए मैकेनिज्म टू कंबाइन वर्चुअल एंड रियल वर्ल्ड। इसके अंदर हमें रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट की भी जरूरत पड़ती है और कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस की भी जरूरत पड़ती है। तो इसके अंदर हम दोनों चीजों को यूज करते हैं। हाउ टू मेक वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड इंटरेस्टिंग, मतलब वर्चुअल रियलिटी में जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं ये बहुत ही डिफिकल्ट है कि उन चीजों को रियल वर्ल्ड के अंदर इंप्लीमेंट किया जाए। मतलब वर्चुअल रियलिटी में आप जो एनवायरनमेंट देखते हैं, ठीक है, उसी एनवायरनमेंट को अगर हम रियल वर्ल्ड के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। कभी कभार तो हम उस एनवायरनमेंट को रियलिटी में क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको क्रिएट करना पॉसिबल नहीं होता। हाउ टू रजिस्टर रियल वर्ल्ड एंड वर्चुअल, इसके अंदर आपको डिफिकल्टी क्या होगी? इसके अंदर डिफिकल्टी यही होती है कि रियल वर्ल्ड को देखते हुए, रियल ऑब्जेक्ट्स को देखते हुए हम उसमें जो है वो कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस फिट करते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती हैं, लेकिन ये सारी डिफिकल्टीज जो हैं बाय यूजिंग द प्रोग्रामिंग हम उनको रिजोल्व कर सकते हैं।
तो ये दो चीजें थी, एक हमारे पास वर्चुअल रियलिटी थी और दूसरी हमारे पास ऑगमेंटेड रियलिटी थी। तो वर्चुअल रियलिटी आपकी 100% फेक है और ऑगमेंटेड रियलिटी जो है वो फेक 50% आपकी फेक होती है या 70% फेक होती है, लेकिन 20 या 30% इसके अंदर आपके रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स लाजमी यूज होते हैं। तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर ही आपकी फेक चीजों को ऐड किया जाता है, लेकिन वर्चुअल रियलिटी के अंदर जितनी भी चीजें आपको नजर आती हैं वो 100% जो होती है वो आपकी फेक होती है। उसके बाद जिस तरीके से आप देखते हैं कि ग्लासेस पहन के या कोई एक ऐसा डिवाइस आईज के अंदर पहन के हमारे पास बहुत सारे एनवायरमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं। अगर इस स्लाइड को मैं उसमें चलाऊं तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एक पर्सन खड़ा हुआ है जिसने कुछ पहना हुआ है और उसके सामने जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं और वो उन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है। ठीक है, तो देखें ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर आप रियल वर्ल्ड के अंदर अपने ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ ऐड करते हैं। अगर हमने किसी रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, किसी रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर हमने फेक ऑब्जेक्ट्स ऐड किए तो दैट इज कॉल्ड योर ऑगमेंटेड रियलिटी। लेकिन रियल एनवायरनमेंट के अंदर आपने फेक ऑब्जेक्ट्स को ऐड किया, अब उसे कंट्रोल भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी कहलाती है दैट इज कॉल्ड योर मिक्स रियलिटी। तो इनमें जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर आपके फेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं रियल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, लेकिन उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते या हम कंट्रोल नहीं करते, जस्ट उनको देखते हैं। लेकिन मिक्स रियलिटी के अंदर उन फेक ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल भी किया जाता है। तो जिस तरीके से देख रहे हैं कि आपका पर्सन है और उस पर्सन ने कोई डिवाइस पहन के रखा हुआ है और वो अपने हाथों से उन चीजों को कंट्रोल कर रहा है। हो सकता है कि वो एक कंप्यूटर सिस्टम भी हो या कोई भी चीज हो सकती है जिसको वो कंट्रोल कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड योर मिक्स रियलिटी। तो मिक्स रियलिटी के अंदर आप अपने रियल ऑब्जेक्ट्स के अंदर वर्चुअल वर्ल्ड को ऐड करते हैं और उस वर्चुअल वर्ल्ड को जो है कंट्रोल भी कर सकते हैं। To produce new environment and visualization where physical and digital objects coexist and interact in real time। ठीक है, तो इसके अंदर जो इंटरैक्शन का इजाफा है वो ऐड किया गया है। आप अपनी चीजों को कंट्रोल भी कर रहे हैं, जो आपकी फेक चीजें हैं उनको हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये आपके मिक्स रियलिटी के अंदर आ जाता है। तो मिक्स रियलिटी जो है वो डील करती है दोनों चीजों को, ऑगमेंटेड रियलिटी को और वर्चुअल रियलिटी को। या आप ऐसा कह सकते हैं कि जब ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी दोनों को कंबाइन किया जाता है तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, रिजल्ट में हमें मिक्स रियलिटी मिलता है। तो वर्चुअल रियलिटी में सारी चीजें जो होती हैं वो फेक होती हैं, लेकिन उनको हम अपने हाथों से या अपनी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें फेक होती है लेकिन उनको हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर फेक चीजें भी होती है, रियल ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन उन चीजों को जो है हम कंट्रोल नहीं करते, वो चीजें हमें नजर आती हैं। ठीक है, और जब हम अपनी फेक चीजों को रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट के अंदर ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के साथ साथ उनको हम कंट्रोल भी कर रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट भी हो रहे हैं, तो फिर ये हमारा क्या हो जाता है, फिर ये आपकी मिक्स रियलिटी के अंदर आ जाता है। तो मिक्स रियलिटी के अंदर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को हम फेक ऑब्जेक्ट के साथ ऐड करते हैं और उनके बाद उनके साथ इंटरेक्शन भी करते हैं, उनको कंट्रोल भी करते हैं। तो बेटा ये सिंपल एक छोटी सी वीडियो है जिसके अंदर मिक्स रियलिटी की एप्लीकेशन को डिफाइन किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो 1-2 मिनट की वीडियो है, आप इसको देख लेंगे तो आपको कंप्लीट मिक्स रियलिटी का जो है वो आइडिया हो जाएगा।
ठीक है बेटा, तो देखा आपने, कुछ समझ में आया? तो बेसिकली ये जो वीडियो थी ये बिल्कुल वॉइस नहीं थी, तो वॉइस इसके अंदर मैंने म्यूट कर दी थी। तो वॉइस के अंदर जस्ट यही बता रहा था कि आपने हार्ट को देखा कि जिस तरीके से आप वर्चुअल हार्ट को देख सकते हो कि किस तरीके से वो एक्शन परफॉर्म करती है, किस तरीके से हार्ट की वर्किंग होती है, और इस तरीके से आप ह्यूमन बॉडी को देख रहे हो कि कौन सी चीजें कहाँ पर है। तो जस्ट इन्हीं चीजों को डिफाइन किया गया था। तो देखिए बेटा, ये जो चीज आपने देखी बेसिकली ये आपके होलोलेंस हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किए हैं। तो होलोलेंस की वीडियो थी। तो होलोलेंस इज द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ मिक्स्ड रियलिटी। तो इसी तरीके से ऐसी हजारों एप्लीकेशंस हैं, ऐसे हजारों डिवाइसेस हैं, ठीक है, जो कि आपकी मिक्स रियलिटी के अंदर आ जाते हैं, जिनको हम मिक्स रियलिटी के अंदर यूज करते हैं। और उन चीजों को यूज करते हुए हम अपनी हजारों एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और मिक्स रियलिटी का। तो आजकल जितना भी काम होता है, तो अगर आपका एटमॉस्फेयर आपने कंप्लीटली फेक एटमॉस्फेयर बनाना होता है और उसको इंटरेक्ट भी करना है, तो फिर हम अपनी वर्चुअल रियलिटी को यूज करते हैं। लेकिन अगर आप रियल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं और रियल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आपने कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी या कोई भी कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेशंस डेटा शो करवानी है, तो फिर आप ऑगमेंटेड रियलिटी के पास जाते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो कि रियल वर्ल्ड के ऊपर फेक चीजों को ऐड करे और उसको आप इंटरेक्ट भी कर सकें, तो फिर आप किस में चले जाते हैं? मिक्स रियलिटी में चले जाते हैं। So these are the applications and these are the simple introduction of virtual reality, augmented reality and mixed reality. और उसके बाद मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाया, गूगल होलोलेंस, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स रियलिटी, जिसके अंदर आप अपनी चीजों को कंट्रोल करते हैं। जी बेटा, आप कह सकते हैं कि जो होलोग्राफ आपको नजर आते हैं, अब वो आपकी चीजें जो होती हैं वो रियलिटी में नहीं होती, लेकिन हम उसे देख रहे हैं और वो 100% फेक है। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी। जो होलोग्राम्स आप देखते हैं, ठीक है, तो दीज आर आल्सो वर्चुअल रियलिटी पार्ट। ये भी आपके वर्चुअल रियलिटी के पार्ट्स में आ जाते हैं। ठीक है बेटा, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। अगर इन कॉन्सेप्ट्स में से कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो वो आप पूछें। उसके बाद हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन की तरफ, जिसके अंदर मैं जस्ट आपको सिंपल इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद मैं आपको ट्यूटोरियल पे लेके जाऊंगा कि किस तरीके से वो चीजें बनती हैं, और उसके बाद आप उस चीजों को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से उस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो देखिए, ऑगमेंटेड रियलिटी के हजारों एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम एडवांस लेवल पे जाते हैं, तो जैसे कि अगर आपको एंड्रॉयड की कोई एप्लीकेशन बनानी है, तो वैसे तो आप एंड्रॉयड को यूज करते हुए एंड्रॉयड आईडीई और जावा को यूज करते हुए आप प्रोग्रामिंग्स करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही एडवांस लेवल पे चला जाता है और इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा कोडिंग करनी पड़ती है और वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। एज ए बिगनर, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपको प्रोग्रामिंग का पता भी नहीं है, तो फिर आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे मैं जो सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ, जिस सॉफ्टवेयर को मैं प्रेजेंट करूंगा, उसके ऊपर अगर आपको प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं पता, तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। उसके ऊपर इतनी ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं है, उसके अंदर इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। जैसे कि आप एमएस पेंट को यूज करते हैं, चीजों को ड्रैग करते हैं, ड्रॉप करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हम अपनी चीजों को ऐड करते हैं और उनको ड्रैग ड्रॉप करते हैं। और उसके बाद थोड़े से प्रोग्रामिंग जो है वो हमें करनी पड़ती है अगर एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट है तो। और इसके अंदर आपको किसी भी स्पेशल हार्डवेयर की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप
कोई भी ऐसा बैनर, इलेक्ट्रिकल बैनर आप कह सकते हैं, ठीक है, वो बना सकते हैं जिसको आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू उसके अंदर जो फेक चीजें उसमें एडिड है उनको आप देख सकते हैं। जैसे कि अभी तक हमने जो स्लाइड्स में देखा कि जो भी वर्चुअल रियलिटी के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए, या ऑगमेंटेड रियलिटी के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए हमें स्पेशल डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे आपका जो स्पेशल डिवाइस होगा जो कि आपको वो फेक चीजें दिखाएगा वो आपका मोबाइल फोन होगा, एंड्रॉयड फोन होगा या आईफोन होगा। तो उसके अंदर आपकी जो एप्लीकेशन होगी ज़ेपर, ज़ेपर एप्लीकेशन बेसिकली आपके उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी फेक चीजें आपने कंप्यूटर के थ्रू ऐड की हैं वो सारी चीजें आपको उस ज़ेपर एप्लीकेशन के ऊपर, जब आप उस पिक्चर को या उस इमेज को फोकस करेंगे तो वो आपको वो रियलिटी दिखाएगा, वो फेक चीजें उसमें जो हैं एडेड है वो सारी चीजें आपको दिखाएगा। बेटा अजान हो रही है, 2 मिनट के लिए मैं स्टॉप हो रहा हूँ।
ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो देखें बेटा, यहाँ पे जो मैं सॉफ्टवेयर आपको बता रहा हूँ, सिर्फ वही सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स रियलिटी को बनाने के लिए आपके पास हजारों सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप यूज करके ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हैं। लेकिन बिगनर के हिसाब से, क्योंकि बिल्कुल आप जीरो लेवल पे अगर देखें, तो ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है, जिसको यूज करते हुए आप अपने बिजनेस से रिलेटेड जो है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशंस हैं, तो उन एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशंस को आप इजीली ऑगमेंटेड रियलिटी में क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अंदर हमें कोई स्पेशल डिवाइस की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जस्ट आपने सिंपल डिजाइनिंग करनी है, अपनी कोडिंग करनी है। कोडिंग करने के बाद आप उसकी जितने भी वर्चुअल चीजें हैं वो आप अपने मोबाइल डिवाइस की एप्लीकेशन के अंदर देख सकते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर है, सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर है आपके पास ज़ेपवर्क स्टूडियो। तो ज़ेपवर्क स्टूडियो के अंदर जो है, डेवलपर फुली कस्टमाइज ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी या मिक्स रियलिटी के प्रोजेक्ट्स इजीली क्रिएट कर सकता है। इसके अंदर आप जो है जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप को यूज करते हुए अपनी चीजों को क्रिएट करते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स कोडिंग नहीं होती। जैसे कि एंड्रॉयड के अंदर आपको बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है एक्शंस क्रिएटिविटी के लिए, ठीक है। तो ऐसी कोई आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप एनवायरनमेंट है। अगर आपने फोटोशॉप यूज किया है तो उसी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग यूज भी होती है एक्शंस के लिए, वो सिंपल आपकी जावा स्क्रिप्ट होती है। मतलब जावा स्क्रिप्ट तो नहीं होती, लेकिन जावा स्क्रिप्ट की तरह होती है। तो सबसे जो इजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमारे पास जावा स्क्रिप्ट है। अगर हम कंप्यूटर साइंस में बात करते हैं तो सबसे जो आसान लैंग्वेज होती है कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो वो हमारे पास जावा स्क्रिप्ट है। तो बिल्कुल जावा स्क्रिप्ट के सिंपल से सिंटैक्स होते हैं, उनको यूज करते हुए आप उसके अंदर एक्शन परफॉर्म करते हैं। और उसके अंदर ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स कोडिंग नहीं होती। आपको कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन या आईओएस एप्लीकेशन क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। आपने जैसे अपना एक प्रोजेक्ट बनाया, आपने एक इमेज बनाई और उस इमेज को आपने प्रिंट आउट किया, और प्रिंट आउट करने के बाद कोई भी उस एप्लीकेशन से उस इमेज को देखेगा तो उसको वर्चुअल एलिमेंट्स उसको नजर आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया होगा अपने पास। अब देखें, जिस तरीके से एक इमेज में आपके पास ओपन कर रहा हूं, और अगर आप इस इमेज को वैसे देखेंगे तो ये सिंपल आपको एक इमेज नजर आएगी, 2D इमेज आपको नजर आएगी। लेकिन आप उस एप्लीकेशन से अगर उस इमेज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस इमेज के अंदर फेक एलिमेंट्स कौन कौन से उसमें एडेड किए गए हैं। तो जिन बच्चों ने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है, या अगर जिन्होंने डाउनलोड नहीं की, तो वो डाउनलोड कर लें, ताकि मैं जस्ट आपको एक सिंपल उसका एग्जांपल दिखाऊं कि किस तरीके से आप एक सिंपल सी पिक्चर को 3D पिक्चर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मैं एक सिंपल एक पिक्चर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो बेटा ये पिक्चर मैंने आपके साथ शेयर की है। अब अगर आप इसको ऐसे ही नॉर्मली देखते हैं तो ये आपको एक 2D इमेज नजर आएगी। लेकिन जब मैंने आपको ज़ेपर ऐप बताई है, उस एप्लीकेशन को ओपन करें, और उस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद उसमें आपका कैमरा ओपन होगा, और उस कैमरा के सामने आप इस पिक्चर को रखेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि दिस इज नॉट ए नॉर्मल पिक्चर, दिस इज ए 3D पिक्चर, ठीक है। तो वो आपको एक 3D इफेक्ट करके देगी। तो बेटा मैं 2 मिनट दे रहा हूं,
आप इसको चेक कर लें। एक एग्जाम्पल जो कि मैंने आपके सामने रखा है, और ये बेसिकली मैंने बनाया नहीं है, ये जस्ट एक ट्यूटोरियल है, वहीं से ही मैंने उठा के आपके सामने रखा है। तो इस तरीके से हजारों जो एग्जाम्पल्स हैं, हम अपनी किसी भी बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई भी 3D इस तरीके से सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। बेटा आप देख रहे हैं, एसिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मुझे पता नहीं चल रहा, तो मुझे इन्फॉर्म भी करते जाएं कि आप एसिस कर रहे हैं या नहीं, और अगर हो जाए तभी मुझे इन्फॉर्म कर दें ताकि फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊं। तो जिन बच्चों ने ज़ेपर ऐप डाउनलोड की है उस ज़ेपर ऐप को ओपन करें। तो जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा। तो आप अपने बैक कैमरा को करके आप उस पिक्चर को रखेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही पिक्चर रखेंगे तो लोडिंग होगी। ठीक है, लोडिंग होने के बाद फिर थोड़ा सा वेट करें। एक जेड का आइकन आएगा और उसमें एक फिल आपकी फिल होगी। जैसे ही वो फिल हो जाएगी तो यही पिक्चर आपको 3D इफेक्ट देगी। तो ये सिंपल किससे सर बना हुआ है जी। सर कंप्यूटर वाले कैसे करेंगे सर? बेटा सॉरी, कंप्यूटर में आप अभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये पिक्चर भी कंप्यूटर में है और आप कंप्यूटर से अभी इसको नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास मोबाइल है तो आप उसको यूज करते हुए इसको देख सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर आप कैमरा ऑन करके ये पिक्चर उसके सामने कैसे रख सकते हैं, नहीं रख सकते। अगर ऐसा होता तो मैं आपको यहाँ पे करके नहीं दिखाता। तो यही मसला है कि एक प्रॉपर वेबिनार या प्रॉपर सेमिनार जिस तरीके से होना चाहिए वैसे ये नहीं हो सकता कि चीजें आपको प्रॉपरली दिखाई जाएं। ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि ऐसी चीजें हैं इनके अंदर जो कि ऑनलाइन नहीं हो सकती। अब हमें बहुत सारे डिवाइसेस रखने पड़ेंगे और हमारे पास अच्छे कैमरा भी होने चाहिए, फिर जाके वो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, तो ये चीजें जो हैं वो ऑनलाइन नहीं हो सकती। लेकिन जितना हो सकता है उतना मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जस्ट मैंने आपके सामने पिक्चर शेयर की है। आप ज़ेपर ऐप अपने मोबाइल में ओपन करें और उस पिक्चर को सामने रखें। तो लोडिंग होगी, लोडिंग होने के बाद आपको ये पिक्चर 3D फॉर्मेट में नजर आएगी। इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो 3D फॉर्मेट में आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जिन्होंने चेक कर लिया है वो मुझे इन्फॉर्म कर दें, और जो चेक कर रहे हैं वो भी इन्फॉर्म कर दें, जो चेक नहीं कर रहे वो भी इन्फॉर्म कर दें, ताकि हमें एक एवरेज का पता चले कि वाकई में आप एसिस कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, कुछ बच्चे अभी भी चेक कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने चेक कर लिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि वो चेक कर रहे हैं। तो जब तक वो चेक कर लें, 1-2 मिनट उनको हम दे देते हैं ताकि वो उस एक्सपीरियंस से गेट हो जाएं, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा, जैसे ही आपने उस इमेज को
अपने उस एप्लीकेशन के अंदर रखा तो सबसे पहले लोडिंग हुई। अब लोडिंग क्यों हुई? लोडिंग इस वजह से हुई कि उस पिक्चर के अंदर जो भी आपके 3D एलिमेंट्स हैं वो सबसे पहले आपके मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो रहे हैं। तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट आपके मोबाइल में नहीं था पहले। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो एक ऑनलाइन वेबसाइट पे रखा गया है, ठीक है। तो जैसे ही आपने अपने मोबाइल से उस पिक्चर पे रखा तो सबसे पहले आपके उस मोबाइल की एप्लीकेशन ने क्या किया है, ये जो आप देख रहे हैं एक बारकोड आपको नजर आ रहा है, सबसे पहले इस बारकोड को उसने रीड किया। रीड करने के बाद इस बारकोड के अंदर एक आईडी लगी हुई है। उस आईडी से उसने क्या किया, इसके सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स को उसने डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद जब तक ये पिक्चर उसके सामने नहीं आएगी तब तक वो आपको 3D एलिमेंट शो नहीं करेगा। अगर ये पिक्चर आप उसके सामने रखेंगे तभी वो आपको 3D एलिमेंट शो करेगा। अदरवाइज अगर आप किसी और पिक्चर पे या कहीं और पे मूव करके देखेंगे तो वो जो 3D ऑब्जेक्ट्स होंगे या तो हैंग हो जाएंगे, रुक जाएंगे, ठीक है, तो फिर वो पिक्चर आपको शो नहीं होगी। तो मतलब एक रियल एनवायरनमेंट के ऊपर कि भाई जब तक ये पिक्चर होगी तब तक वो आपके वर्चुअल चीजें हमें नजर आएंगी। अगर ये पिक्चर आपके पास नहीं होगी तो आपकी जो वर्चुअल चीजें हैं वो आपको सही से नजर नहीं आएंगी। एक 3D इफेक्ट आपको वो नहीं देगी। एप्लीकेशन वहीं पर ही आपके एलिमेंट्स को रोक देती है। तो इस एप्लीकेशन के अंदर जो रियल ऑब्जेक्ट है वो आपकी ये पिक्चर है, ठीक है। और जो वर्चुअल एलिमेंट्स हैं वो जो आप 3D देख रहे हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, तो वो 3D ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके वर्चुअल्स हैं। और ये आपकी जो पिक्चर है जो कैमरा के सामने हम रख रहे हैं, तो ये आपका एक रियल एंटिटी है। अगर आप इस पिक्चर को प्रिंट आउट करके भी आप उस कैमरा के सामने रखेंगे तो ये ही आपकी प्रिंट आउट पिक्चर, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर, आपको एक 3D फॉर्मेट में उस एप्लीकेशन के अंदर आपको नजर आएगी। लाजमी नहीं है कि ये पिक्चर इसी कलर फॉर्मेट में हो। आप इसका ब्लैक एंड व्हाइट अगर प्रिंट आउट निकाल दें और प्रिंट आउट निकालने के बाद अगर कोई भी अपनी मोबाइल से ज़ैपर ऐप के थ्रू इसे स्कैन करता है तो यही पिक्चर उसको एक 3D फॉर्मेट में नजर आ रही है। तो दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी जो कि आपका बनाया गया है ज़ैपवर्क स्टूडियो के अंदर। अब ये किस तरीके से बना हुआ है, किस तरीके से इसके अंदर चीजें ऐड की गई हैं, ज़ैपवर्क स्टूडियो क्या है, कैसे चलता है, और जब प्रोजेक्ट बनता है तो वो कहाँ पे अपलोड होता है, तो ये सारी जो चीजें हैं उनके बारे में मैं आपको चीजें बताऊं। लेकिन इसके अंदर जो है हम कोई भी चीज अभी अपनी खुद की नहीं क्रिएट करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंट्रोडक्शन बिगनर्स के लिए सेमिनार है, वेबिनार है, जिसके अंदर जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ और उन चीजों को यूज करना सिखा रहा हूँ। तो हो सकता है कि बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट अगर हम रखेंगे तो उसमें जो है मैं आपको चीजें बनाना भी सिखाऊंगा कि अगर हमें ये चीज बनानी है तो वो किस तरीके से बनेगी, अगर ये चीज बनानी है तो किस तरीके से बनेगी। लेकिन मैं आपको इसका ट्यूटोरियल बता दूंगा कि उस वेबसाइट पे जाके वहां पे जो प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा है। जिस तरीके से ये एग्जाम्पल है ये भी आपके ट्यूटोरियल के अंदर पड़ा हुआ है कि ये किस तरीके से बना, ठीक है। तो ये सारी जो ट्यूटोरियल्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा ताकि जो है आप उन ट्यूटोरियल्स को फॉलो करते हुए आप इस चीज को सीख सकते हैं। तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट है और आप इसके ऊपर काम करना चाहते हैं तो इन ट्यूटोरियल्स के ऊपर इन वेबसाइट्स पे जाके आप ऐसी छोटी छोटी एप्लीकेशंस जो हैं वो अपनी भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स लगे हुए हैं, आप अपने खुद के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डाउनलोड करके या बना के इसमें ऐड कर सकते हैं।
तो उम्मीद है बेटा जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबने देख लिया होगा, तो मुझे इन्फॉर्म कर दें। अगर कोई अभी भी वेटिंग में है या देख रहा है, जिन्होंने देख लिया है वो भी बता दें। ठीक है बेटा, तो तमाम स्टूडेंट डन कह रहे हैं, तो उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा और एक अच्छा सा एग्जाम्पल आपको मिल गया होगा कि ऑगमेंटेड रियलिटी का चीजें देख रहे हैं। ठीक है, हैक वर्जन जो है किसी वेबसाइट के अंदर नहीं आया, मतलब बहुत सारे आपको मिल जाते हैं फुल वर्जन सॉफ्टवेयर्स। तो इसका अभी तक फुल वर्जन जो सॉफ्टवेयर है वो मुझे नहीं मिला। तो जैसे ही मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर लूंगा, तो फिर वहां से आप इसको डाउनलोड करके फॉर अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले ये डाउनलोड किस तरीके से होगा, कहाँ से होगा, तो आपने क्या करना है बेटा, गूगल पे जाके आपने लिखना है ज़ेपवर्क स्टूडियो। ठीक है, जैसे ही आप रखेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे zep.works और उसके बाद स्टूडियो। ठीक है, यहां से जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक फाइल होगी, एक्जी फाइल, जो कि डाउनलोड हो जाएगी आपके पास। मेरे पास ऑलरेडी गिवन है डाउनलोड स्टूडियो फॉर विंडोज। अगर आपके पास मैक है तो आप मैक के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां से सिंपली आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद बेटा जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि ये जो प्रोजेक्ट आपने देखा, ये किसी वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है। जैसे ही आपने अपनी मोबाइल से स्कैन किया तो उस वेबसाइट से पहले आपके पास मोबाइल में डाउनलोड हुआ। डाउनलोड होने के बाद ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जिस जगह पे आप अपना प्रोजेक्ट रखेंगे वो ही वेबसाइट आपकी ज़ेपवर्क स्टूडियो आपको प्रोवाइड करता है। उसी जगह पे आप इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड या इस प्रोजेक्ट को रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, डाउनलोड कर लिया आपने। अब जिस तरीके से मैं ऑलरेडी इनकी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन हूं, ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, माय ज़ेपवर्क वेबसाइट पे आप जाएंगे या फिर आप यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे ज़ेपवर्क और उसके बाद आप लॉगिन लिख देंगे, लॉगिन। तो ये आपके पास वेबसाइट आ जाएगी, या आप इस वेबसाइट को नोट कर लें, my.zep.works। ये इनका डोमेन है। इस डोमेन के ऊपर जितने भी आप सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे वो सारे के सारे आपके प्रोजेक्ट्स इस वेबसाइट पे स्टोर होंगे। तो अब आपने यहाँ पे अकाउंट बनाना है। आप गूगल को यूज कर सकते हैं, फेसबुक को यूज कर सकते हैं, या स्लैक कोई तीसरा इंटरफेस है जिसका मुझे नहीं पता। तो बाकी ये दो कॉमन है, हर किसी का अकाउंट होता है, गूगल पे भी फेसबुक पे भी। तो आप किसी से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा लॉगिन विद फेसबुक, तो देखिए बेटा फेसबुक के ऊपर यहाँ पर आप आ गए और देखिए यहाँ पे ऊपर आपको बता रहा है कि आपका ट्रायल वर्जन चल रहा है और ट्रायल वर्जन आपका कितने तक है, 29
डेज तक है। तो ये आपका इंटरफेस है जहां पे आप अपने प्रोजेक्ट को सेव करते हैं, और कोई भी आपके प्रोजेक्ट को देख रहा होता है, उस पिक्चर को देखता है, तो आपका प्रोजेक्ट यहां से डाउनलोड होके उसके डिवाइस के अंदर सेव होता है, फिर वो उसको वो चीजें दिखा रहा होता है। तो एक मरतबा आपके डिवाइस के अंदर डाउनलोड हो गया, उसके बाद बार बार डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये वो जगह है जहां पे आपको अकाउंट बनाना है, सिंपली आपका अकाउंट बन जाता है, इसके ऊपर जाना है और लॉगिन विथ जीमेल या लॉगिन विथ फेसबुक करना है, तो आप लॉगिन हो जाते हैं और यहाँ पे आप सबसे पहले अपना एक प्रोजेक्ट बना दें किसी भी नाम से। तो अब ये प्रोजेक्ट के अंदर जो चीजें होंगी वो सेव किस तरीके से होंगी, ठीक है, वो जस्ट यहाँ पे आप प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब प्रोजेक्ट को क्रिएट हम किससे करेंगे? ज़ेपवर्क स्टूडियो से करेंगे। तो यहां पे आपने अपना अकाउंट बना दिया। अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या करना है बेटा, आपने अपने कंप्यूटर में ज़ेपवर्क स्टूडियो ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद यहां पे आप अपना न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आप अपना न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब ये बेसिकली आपके जो हैं वो इमेज ट्रैकिंग है, ठीक है, ये ऐसे ही एग्जांपल्स हैं, तो आप इन एग्जांपल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हजारों एग्जांपल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये वो सारे एग्जांपल्स हैं, इनको यूज करते हुए, इसमें चेंजेस करते हुए आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो ज़ेप बॉक्स है बेसिकली इसके लिए आपको कुछ हार्डवेयर खरीदने पड़ते हैं, तो ये आपके बेसिकली मोबाइल के ऊपर या उस स्क्रीन के ऊपर काम नहीं करता। तो इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि हैंड में कोई चीज उसने पकड़ के रखी हुई है, और ये जो प्लेट्स आप देख रहे हैं, तो ये एक डिवाइस है, कंप्लीट बॉक्स है जो कि ये प्रोवाइड करते हैं, वो लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है, जब तक आपके पास ये डिवाइसेस अवेलेबल नहीं है तब तक आप इनके ऊपर काम नहीं कर सकते। उसके अलावा बाकी जितने भी हैं ये सारे के सारे आपके नॉर्मल जो हैं वो मोबाइल के ऊपर आपको शो हो जाएंगे। तो ये सारे एग्जांपल्स आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था मैं उसे ओपन करता हूं, ओपन। तो यहाँ पे मैं इसे ओपन करूंगा तो इस तरीके से आपके पास एटमॉस्फेयर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो है आपको थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन बता देता हूं कि कौन सी चीजें कहाँ पे होती हैं। पहले इसको कंप्लीट कर दूं मैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करके ये इंफॉर्मेशन आपको देगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बेटा इसमें आपके पास जो है वो एक टारगेट फ्रेम बनता है। टारगेट फ्रेम मतलब जो आपकी एक्चुअल इमेज होती है वो एक्चुअल इमेज आपकी क्रिएट होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइब्रेरीज के अंदर आपको क्या करना होता है, आपको अपने सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे रखने होते हैं। मतलब जो भी आपकी पिक्चर्स हैं वो तमाम पिक्चर जो हैं वो आप यहाँ पे रखते हैं। अब जो मेन आपकी पिक्चर होती है उस पिक्चर को जब आप ऐड करेंगे तो किस तरीके से ऐड किया जाता है। अब सपोज करें कि यहाँ पे मैं किसी पिक्चर को ऐड कर रहा हूँ। सपोज करें कि अभी तो कोई पिक्चर अवेलेबल नहीं है, तो ठीक है मैं गूगल से डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो बेस्ट जो पिक्चर होगी उसको ऐड किस तरीके से किया जाएगा, तो जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ। यहाँ से कोई भी पिक्चर आपने डाउनलोड कर ली, सपोज करें कि ये पिक्चर है, इस पिक्चर को हम डाउनलोड करते हैं। और जो बेस्ट पिक्चर होगी बेटा वो लाजमी आपकी हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए, बिल्कुल लो क्वालिटी अगर होगी तो वो फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आपको एरर देगा। इसको मैंने नाम दे दिया बेस। अब जैसे कि आपके पास प्रोजेक्ट है, आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसकी बेस्ट पिक्चर आपने बनानी है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो जो हमें ज़ेपवर्क स्टूडियो या ज़ेपवर्क
वेपर एप्लीकेशन के अंदर 3D इफेक्ट नजर आ रहा था वो आपको यहाँ पे उसी व्यू में हमें नजर आ रहा है। तो देखिए ये 3D इफेक्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जो कि हमने 2D इमेज के ऊपर लगाया था। तो ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं इस तरीके से। तो ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं पहले से इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो इन ऑब्जेक्ट्स को मैं अभी मूव नहीं कर रहा। तो जस्ट मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने अपनी पिक्चर की बेस बनानी है, किसी भी पिक्चर के ऊपर आप काम करते हैं तो जो बेस पिक्चर है वो किस तरीके से बनती है। तो जस्ट इसको हमने नाम दे दिया माय प्रोजेक्ट। तो देखिए बेटा, जैसे ही आप इस न्यू प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं तो आपको इस तरीके से एटमॉस्फेयर मिलेगा जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जस्ट एक रूट मिलेगा और उसके अंदर हाइड एंड शो होगा और कुछ भी नहीं होगा। और इसी तरीके से ये बेसिकली कोडिंग्स हैं। ये एक जावास्क्रिप्ट की तरह एक सिंपल सी कोडिंग होती है जिसके अंदर हम छोटा सा कोड लिखते हैं, 1 बाय 1 लाइंस लिखते हैं और उन लाइंस के अंदर आपका वो काम हो जाता है। तो ज्यादा लंबे चौड़े कोड्स आपको लिखने नहीं पड़ते। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स करेंगे जब फिजिकल एनवायरनमेंट में आएंगे, तो फिर उसके अंदर हम ऐसे कोर्स करेंगे जिसके अंदर हम एक्शन परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका सेंसर होता है जो कि आपकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसके अंदर भी सेटिंग्स हम करेंगे। तो अभी सिंपल आपने क्या करना है, अगर आपने बेस्ट पिक्चर बनानी होती है तो सबसे पहले एड में जाते हैं। एड में जाने के बाद आप क्लिक करते हैं ट्रेन इमेज फाइल, ठीक है। अगर आप सिंपल मीडिया इंपोर्ट करेंगे, अभी मैं सिंपल आपको एक पिक्चर यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ। अगर नॉर्मल तरीके से आप ऐड करते हैं तो वो किस तरीके से आती है, और अगर हम उसे ट्रेन करके लगाते हैं तो वो किस तरीके से आती है। तो दोनों वेज के अंदर मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। तो सिंपल नाम हमने बेस, तो देखिए बेटा सिंपल यहाँ पे बेस इमेज मैंने इंपोर्ट की और यहाँ पे इंपोर्ट हो गई। तो ये इमेज यहाँ पे पड़ी हुई है। अगर आप उसको अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से ड्रैग करके इस रूट के अंदर आप रख देते हैं, ठीक है। तो अब ये जो पिक्चर है वो बिल्कुल नॉर्मल 3D की तरह आपके पास आएगी और यहाँ पे ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं, ठीक है, व्यू है, ये ऑप्शंस आपके पास एक्टिव नहीं है। तो ये एक सिंपल आपकी 2D इमेज यहाँ पे नजर आएगी। तो अगर आप नॉर्मल तरीके से अपनी पिक्चर रखते हैं तो वो ऐसे नॉर्मल आपके पास आ जाती है। लेकिन क्योंकि हमें उसे 3D इफेक्ट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो है
सॉरी बेटा, ये थोड़ा सा डिस्कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो गया था। पता नहीं कहाँ पे पहुंचे थे हम। मैं तो बोलता जा रहा था, मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये कुछ डिस्कनेक्टिविटी इशू हो गया है। तो वो मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ पे ये डिस्कनेक्ट हो गया। तो थोड़ा सा मुझे बता दें कि कहाँ तक मैं पहुंचा था कि फिर डिस्कनेक्ट हो गया, ताकि मैं वहीं से स्टार्ट करूं। कोई तो रेस्पॉन्स दे दे बेटा। तो मुझे कोई बता दे कि कहाँ पे ये डिस्कनेक्टिविटी इशू हुआ था।
कि कौन सी चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ताकि मैं उस चीज़ को दोबारा से